हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो हैप्पी महावीर जयंती, हैप्पी अम्बेडकर जयंती टू यू। सो आज हम इतने स्पेशल डे पे मैंने सोचा कि हम अम्बेडकर जी की डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरी स्टार्ट करें। सो वी विल गो विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डेमोक्रेसी थ्योरी एज पॉलिटिकल एंड सोशल। और उनके बारे में यू नो एवरीवन कि वो कौन थे। ही इज़ अ फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इवन वी ऑल नो ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उनका फुल नेम था भीमराव अम्बेडकर। एंड ये कॉमन सी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि what ही इज़ नोन एज, उनका किस पे इन्फ्लुएंस रहा और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या थे और क्या उनके लिए डेमोक्रेसी क्या थी। सो अब हम वो सब आगे पढ़ते हैं। ओके। Introduction of Ambedkar ji. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee of Constituent Assembly of India and become known as the architect of the constitution. He played an important role in Indian modern history. He can safely be called as one of the makers and shakers of modern history of India. He was naturally gifted person who took to the leadership of the depressed classes. ये हमें पता है कि वो आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, फादर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। इवन वो जो सबसे नीची क्लास के लोग थे, डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, उनके लिए वो एक मतलब भगवान बन के आए थे इस धरती पे। सो नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस। महात्मा कबीर वॉज अम्बेडकर सेकेंड गुरु एंड अ बिग इन्फ्लुएंसर। वो अम्बेडकर जी के सेकेंड गुरु थे और उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। J.S. मिल की राइटिंग्स ने भी अम्बेडकर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। देन बुद्धा डॉक्ट्राइन ऑफ एनिका एंड अनाथा exercised a profound influence on Dr. B.R. Ambedkar. Now, B.R. Ambedkar के important works क्या थे? Most important, The Untouchables, then Thoughts on Pakistan, then State and Minorities. So, now, according to, first of all, meaning of democracy, term democracy derived from the Greek word, that is demos and katos, which means the people and the later power. So, it means power in people's hand, right? Next, undefined sense. A political power is ultimately in the hands of the whole adult population and no smaller groups has the right to vote. Now, Ambedkar on democracy. अब अम्बेडकर जी का क्या व्यू था डेमोक्रेसी के ऊपर? Democracy is a form and a method of government whereby revolutionary changes in the social life are brought about without bloodshed. कि revolutionary changes आएंगे हमारे गवर्नमेंट, जो मेथड ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर, पर किसके बिना? ब्लडशेड के बिना, कि खून खराबे के साथ नहीं करनी हमने कोई भी रेवोल्यूशन, बल्कि विदाउट ब्लडशेड करनी है। He wanted to establish the principle of one man, one vote and one value, not only in the political life of India, but also in social and economic life. Ambedkar paid greater attention to social linkage among people than separation of powers and constitutional safeguards for democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at least of its social democracy. Then 4 premises on democracy. According to Ambedkar जी की 4 premises क्या थे? The individual is end in himself, कि इंडिविजुअल के अंदर ही पार है, ठीक है, वो खुद के अंदर ही उसका सब कुछ है। द इंडिविजुअल हैज सर्टेन इनएबल राइट्स विच मस्ट बी ग्रेंटेड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके ऊपर इंडिविजुअल के पास कुछ ऐसे राइट्स है जो ग्रंटेड उसको मिलेंगे according to constitution. The individual shall not be required to relinquish any of his constitutional rights as a condition precedent to the receipt of privilege. The state shall not delegate powers to private person to govern others, कि state जो है अपनी delegate powers जो है private persons को नहीं देगी ताकि वो govern कर सकें, कि हम ही लोग जो हैं right to vote है हमें और हम ही लोग जो हैं अपनी सरकार खुद चुनेंगे। Then necessary conditions क्या थे?
सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी। इक्वालिटी होनी चाहिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे अगर डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी नहीं होगी तो जो डेमोक्रेसी वो नहीं चल पाएगी। देयर शुड नॉट बी एन ऑप्रेस्ड क्लास एंड देयर शुड नॉट बी अ सप्रेस्ड क्लास, राइट? इफ देयर इज नो इक्वालिटी इन आवर डेमोक्रेसी। टू पार्टी सिस्टम, right? The second important condition for the successful working of democracy is the existence of strong opposition to the ruling majority. Now see कि अगर मोदी जी के opposite कोई अच्छा, कोई बहुत ही strong leader होगा तो हमें choose करना होगा कि हाँ कि मोदी जी या कोई और दूसरा strong leader. If we suppose anyone, ठीक है ना, कि हम suppose कर लेते हैं लाइक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अभी भी ज़िंदा है एंड नाउ देयर इज़ मोदी जी, सो वी हैव चॉइस टू elect a cult personality, राइट? अ पर्सनैलिटी कि हमें जिससे हम प्रभावित हम उसको वोट देंगे, राइट? तो इक्वालिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर मस्ट बी नॉट ओनली इक्वालिटी बिफोर लॉ बट देयर मस्ट बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि सिर्फ इक्वालिटी लॉ के ऊपर ही इक्वालिटी नहीं रह जाती बट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स लीगल प्रोविजन इज़ ओनली स्केलेटल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ लीगैलिटी है वो एक मतलब एक क्या स्केलेटन इज व्हाट कि एक ढांचा, बस वो ही बन के रह जाता है। द फ्लैश ऑफ द स्केलेटन इज़ टू बी फाउंड इन व्हाट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कि जिस ढांचे के अंदर हमें मतलब हमारा जो फ्लैश फाउंड होगा तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, मास जिसे कहा जाता है। नो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है? माइनॉरिटी मस्ट ऑलवेज फील सेफ दैट ऑल्दो द मेजॉरिटी इज़ कैरिंग ऑन द गवर्नमेंट द माइनॉरिटी इज़ नॉट बीइंग हर्ट, कि माइनॉरिटी इफ़ मेजॉरिटी को भी हम वोट देंगे तो माइनॉरिटी जो है उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे, माइनॉरिटी को भी, तो उनको भी हर्ट नहीं होगा, मेजॉरिटी को भी हर्ट नहीं होगा, इक्वली दोनों को लेके साथ चलना पड़ेगा। मॉरल ऑर्डर होना चाहिए दोनों, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं कि मेजॉरिटी जो है वोट, आई मीन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कास्टिज्म कि हिंदू डाल सकते हैं वोट और सिख नहीं डाल सकते, लाइक दिस। पब्लिक कॉन्साइंस की पब्लिक का पूरा देख दाख के उसको साथ में उसकी जो भी कंडीशंस हैं, उसके कोई भी ज़रूरत है तो उसको देख के ही वोट डालना पड़ता है कि उसकी कौन साइंस है। नाउ कम्स द सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इज़ व्हाट, कि डेमोक्रेसी टू हिम इज़ मोर देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, राइट? सो नेक्स्ट इज़ लिबर्टी। Ambedkar, quoting Lasky, said that for liberty to be real, it must be accompanied by certain social conditions, right? Then equality, fraternity. ये तीन है most important social democracy के parts, that is liberty, equality and fraternity, right? डॉक्टर अम्बेडकर की डेमोक्रेसी में क्या है ये हमें सबको पता चल गया। डॉक्टर अम्बेडकर wanted social democracy to cherish in India. He was of opinion that political democracy must change its form to social democracy in order to develop socialism. Now comes this conclusion. Conclusion is Dr. Ambedkar's unshakable faith in democracy, an extraordinary role which he defined as one person, one vote and one vote, one value. एक पर्सन है, एक वोट मिलेगा, एक वोट होगा और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, डबल वैल्यू नहीं होगी।